Hi, today there is a question. What you have got, you have received from Trifecta, means Jupiter, Venus, and Moon in Revati. It was there in, I think, 15-20 days back, and I don't remember whether I have mentioned that, but I made video on Jupiter and Venus conjunct in Revati last house, last Kalpurush house means Piscean with last Nakshatra Revati, when they are there together, Dev Guru and Daitya Guru. So what you have received, actually my uh, Atmakaraka is in Revati only. So when Venus was crossing my Atmakaraka is in last degree of Revati. So when Venus was crossing my last degree of Revati, it has given me, it has blessed me with a huge responsibility, which was my childhood dream. It was my childhood dream to have, to be a rescuer, and to have a place I don't have till now, but to have a place where I can keep the sick stray animals and take care of them, and after they get cured, I will drop them to their place from where I have picked them up. So during COVID, it was a government project without salary. It will not be salaried, but you can feed, you should feed, take responsibility of feeding the stray animals of your area. And there were so many, I think 4-5 girls were there who decided to open a FB group, and many of us, many, I think 40-50 or more people among us who has taken responsibility of areas to feed number of stray animals and on taking care of stray animals. And I started feeding stray animals as well as beggars and laborers and all who were returning from the place of job to Dehradun, if Dehradun is their hometown. Then it was a huge responsibility of cooking for 70 people every day, doing grocery and distributing food among them. I started for animals only as a government project. It was not salaried, but government was distributing food, but that food distribution center was far away from my home, so I did not collect from there, and I made myself. It was simple dahi chawal, biscuit, etc., and for beggars and laborers started asking for food. So my husband told, you should, when you are giving to animals, you should give to humans also, they are asking. So I used to make roti sabji, 30-40 roti, and some one small pressure cooker of sabji. Small means this big pressure cooker of, I think, 2-3 liter pressure cooker of sabji, and one big pressure cooker full fried rice I used to make with the Nutri-Nugget soybean chunks and some vegetables, gajar या जो भी beans उस समय जो भी जब सस्ता मिला. So I used to make this food and distribute every day. So then afterwards, when every shop started opening and school colleges started opening, even then I continued feeding animals and taking responsibility of them. If any of them made accident, like reduced few places, like few shops and schools and colleges and hostels, hotels opened, and nearby area the dogs used to get the food. So stopped distributing food there, but there were some places where there were dogs where there were disabled dogs and all. So I did not stop distributing food there. Disabled, and some were very thin, they could not fight and produce food for themselves. So some of the dogs I am feeding till date. Some of the dogs, I think 15 to 20 dogs I am feeding, and I used to take care of them also. If they made accident or some disease is there, I take care of them. I keep them at home. If it is possible to pick them up and go to
hospital and drip. After drip, I drop them to their place, something like that. Whatever I can do, I do. So इतना अगर नहीं करते तो some of the friends say कि तुम्हारे सोने के कंगन हो जाते, तुम्हारा मकान हो जाता, अभी तो तुम फ्लैट में रहते हो, तो इट इज़ ओके. हाँ, फ्लैट में रहते हैं, उसमें एक दिक्कत है कि फ्लैट में हम ज़्यादा कुत्ता नहीं रख सकते हैं. बट this Jupiter, Venus and Moon trifecta, it has given me some confidence because this position will come 12 years after 12 years. Okay, so it has given me some confidence, you can say, not confidence again it has given me some, yes, probably confidence to my personality that I can do it. Ishan goes to college and Ishan comes back from college late night and then he takes the dogs to stroll in the morning also. Me and Ishan divide. Most of the time I take the dogs to stroll morning and afternoon, and at night Ishan takes, and it is flexible whatever. So now when Venus was crossing 29 degree, that time it happened within few days. एक्चुअली स्पेइंग कराना था 2 डॉग्स को. उनको स्पेइंग के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देके आए थे 3 डेज़ के लिए. HSI डज इट. सो उनमें से एक का पक गया था, एंड दोज HSI पीपल वेर गोइंग फॉर सम ट्रेनिंग इन लखनऊ, सो दे टोल्ड मी कि आपको उसको थोड़ा केयर लेना पड़ेगा. एंड दैट टाइम ऑलरेडी वन ऑफ अनदर डॉग हु हैज़ ब्रोक हिज हाइंड लेग, उसका भी सर्जरी हुआ. मतलब 2 दिन के अंदर 3 सर्जरी, मतलब 2 दिन के अंदर हम 3 सर्जरी हुआ और हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए थे. उसमें से आई होप, फिंगर्स क्रॉस, कि जिनका पैर टूट गया था उसका शायद ठीक हो गया होगा अभी तक, क्योंकि अभी तक उसका प्लास्टर तो नहीं होगा हिप में, इसीलिए वो बंधा हुआ है पूरा. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. शुरू में उसको पूरा गोदी में उठा के, एडल्ट डॉग गोदी में उठा के सूसू कराने के लिए, पॉटी कराने के लिए बाहर ले जाना पड़ता था. नाउ ही इज़ ऑलमोस्ट ओके. आज शायद उसके पट्टी वट्टी सब खुल जाएगा. फिर देखते हैं उसका सक्सेसफुल रहा कि नहीं. जिस डॉग्स का सर्जरी हुआ था उसमें से चोकोला का बिल्कुल पक गया. उसका मेडिसिन स्प्रे सब कुछ लगने के बावजूद अभी मैं ये कर रही हूँ, वीडियो कर रही हूँ. ये सब करना नहीं चाहिए एक्चुअली, शुड बी वेरी सीरियस, बट बताना ज़रूरी है. क्योंकि बताना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने एबिलिटी को हमेशा अनदेखा अनसुना करते हैं. हम ये सोचते हैं कि हमारा कैपेबिलिटी नहीं है. भगवान हमें बहुत कैपेबिलिटी के साथ भेजते हैं. हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमें हेल्प करना चाहिए. पैसे के बारे में भी, जिसके पास जितना पैसा है उसमें लोग हेल्प कर सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि कोई महल में रहता है तभी हेल्प कर सकता है, क्योंकि मेरे मोहल्ले में ही देयर आर सो मेनी पीपल हु आर हैविंग देयर ओन हाउस. उन्होंने स्ट्रे डॉग्स को घर के अंदर रखा क्या? घर है, अपना छत है, बगीचा है, रख सकते हैं आराम से, बहुत स्पेस है, रखे हैं क्या? नहीं ना. तो इसीलिए आपका पैसा कितना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता आप क्या कर सकते हो. फ्लैट के अंदर मेंटेन करना, मेरी तो 2 या 9 ईयर्स बाद मेरी बाई वापस आई थी. उसके बाद जब 3-4 कुत्ते घर में आ गए तो वो भाग गई. एक्सीडेंट भी हुआ था, उसके बाद वापस नहीं आया. आई डोंट नो, मेरे ख्याल से वो ठीक भी हो गई होगी. तो भी उसके बाद 4 कुत्ते के बाद अभी तो 7 हो गया. बिकॉज देर आर सो मेनी डॉग्स. एक छोटा सा स्मॉल पॉप था जिसका पैर के ऊपर से गाड़ी का चक्का चला गया था, तो उसकी बिल्कुल चिथड़े टाइप के हो गए थे उसका पैर का ड्रेसिंग हुआ 1.5 महीना. डॉक्टर मुझे सिखा दिए, क्योंकि एवरी डे तुम कैसे कैरी करके ले जा सकते हो, पैसा भी लगता है ना, 150 रुपया 100 रुपया तो मिनिमम लगता ही है. तो उसका घर में ड्रेसिंग किए, मेडिसिन दिए थे, मेडिसिन खिलाए, और 1-1.5 महीना बाद वो ठीक हो गया. वो ठीक हो जाने के 2 दिन के बाद ही ईशान का चश्मा खा लिया. चश्मा खा के, चश्मा, मेडिसिन की पूरा स्ट्रिप, तो फॉयल, ग्लास सब कुछ खा लिया वो. मतलब कांच के टुकड़े भी खा लिए. उसका एक्सरे हुआ कल, आज उसको फिर से लेके जा रहे हैं. कुछ मेडिसिन दिए थे जिससे कांच उल्टी किया आज, और पॉटी के साथ वो टिन फॉइल्स निकल रहा था. मतलब आप ये कह सकते हो कि सुन के ये लग रहा होगा कि 7 कुत्ता एक औरत कैसे कर सकती है. हाँ, ईशान शाम को आ जाने के बाद 5 कुत्ते को एक बार घुमाने ले जाता है. कुछ कुत्ते हैं जिनको मेडिसिन खिलाना डिफ़िकल्ट है, उसको खिला भी देता है. तो कैसे हो सकता है बिना सर्वेंट का घर का क्लीनिंग कैसे करते हो? 1 पर्सन कैन डू एवरीथिंग. क्योंकि मेरे पास टीवी नहीं है और नेटफ्लिक्स और ये सब कभी कभार 1-2 महीने में एक बार ऐसे मौका मिलता है. तो अगर आप नेटफ्लिक्स, दारू, सिगरेट,
टीवी, ये सब में एडिक्टेड, किसी भी चीज़ में एडिक्टेड नहीं हो। अगर आप काम पे एडिक्टेड हो, डेडिकेटेड हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो एंड हमें करना चाहिए। मुझे लगता है सब कुछ पैसे के ऊपर अटक नहीं जाता है, क्योंकि आप अगर इतना सीरियस है कि उसको आप नर्सिंग होम में रखना पड़ता है कोई एनिमल को, तब आपका एक्सपेंसिव होता है। सरकारी भी बहुत कुछ है जहाँ आपको नॉमिनल खर्चे में हेल्प करते हैं, ट्रीटमेंट हो जाता है स्ट्रे एनिमल्स का। इवन ईवावेट्स, जहाँ मैं, मेरे घर के पास में ईवावेट्स है, सर्जरी 2 सर्जरी तो मैं सरकारी में कराई थी फ्री में कराने के लिए। ईवावेट्स में भी वो लोग जो चार्जेस है प्राइवेट हॉस्पिटल का, उससे काफ़ी कम कर देते हैं जब मैं रास्ते से उठा के ले जाती हूँ कोई भी एनिमल को। तो भी मतलब इस समय चोकोला का पूरा स्टिच खुल गया है। सिस्टर कल रात को आई, बहुत आधी पानी तूफान था, रात को आके वो, अभी ऐसा हो गया ना, नोन क्यों अननोन कुत्ते भी आके मेरे दरवाजे पे, मेरे बालकनी के नीचे आके पेट में इंजरी है ऐसे सो के दिखा देता है कि मेरे पेट में इंजरी है, हेल्प मी। यू कांट बिलीव, ये बिलीव करना मेरे लिए ही इम्पॉसिबल है कि उन्हें पता चल गया है कि ये हॉस्पिटल है और वो खुद ही आ जाता है बीमार होने से। जैसे किसी एकदम 100% अननोन कोई कुत्ता जिसका यहाँ पर कटा हुआ था, खून निकल रहा था, वो इतना बड़ा साइज़ का था कि उस पास जाना ही डिफ़िकल्ट है, वो खुद मेरे पास आया मेरे घर में, और चोकोला उसको लेके आया कि चलो मम्मी तुम्हें मेडिसिन लगा देंगे। मैं उसको स्प्रे लगा दिया, यहाँ पर स्प्रे इतना जलता है फिर भी वो कुत्ता कुछ नहीं किया। 1-2 दिन आके लगा के गया, फिर उसका घाव ठीक हो गया। तो मतलब आप बिलीव नहीं कर पाओगे, ये सब सुन के लगता है कि भगवान हमारे पीछे हैं। हम ये हर एक इंसान के पीछे भगवान है, क्योंकि भगवान हमें क्रिएट किए हैं। तो हम में से एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी एनिमल, एवरीवन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भगवान, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। तो आपके पीछे भी खड़े हैं, आप महसूस करो उस चीज़ को। तो सिस्टर का भी पक गया है स्टिच, चोकोला तो बिल्कुल खुल गया उसका स्टिच, शायद फिर से स्टिच कराना पड़ेगा। ग्लोई का बिल्कुल पता नहीं, आज बैंडेज खुलेगा तो पता चलेगा कि उसका पैर जुड़ा या लाइफ लॉन्ग के लिए टूटा रह गया, वो पता चलेगा। उसके बाद जो शीशा खाया था, 19 फॉल्स खाया था, वो पॉटी में और उल्टी में निकल रहा है। दिस इज़ माई गेन इन जुपिटर वेनस कंजंक्टिन रेवती। लास्ट रेवती क्या है? रेवती का लॉर्ड है पशुपतिनाथ। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, रेवती का लॉर्ड पशुपतिनाथ है। अच्छा, इसमें मुझे समवन हैज़ डोनेटेड मी 1 केज, क्योंकि घुंघरू एंड लियो दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। एक का हार्निया का सर्जरी होगा 6 महीने होने के बाद, और दूसरे का जो है उसका पैर में इंजरी था, तो इसलिए 1 केज, अपना पुराना केज एक जन गिफ्ट किए, तो बच्चे थोड़ा बड़े हो गए तो 2 केज में 2 रख सकती हूँ। और एक कल मुझे मैसेज किए थे कि आपका एड्रेस दीजिए, आपको बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए टॉयज़ भेजने हैं, गिफ्ट करना है। तो पीपल आर गुड। हो सकता है कि 100% पीपल ऐसे नहीं हैं इंक्लाइन, लेकिन अगर 2, 4, 5 इंसान भी अप्रिशिएट करते हैं, थोड़ा सा हेल्प करते हैं। आई हैव एटलीस्ट 3, 4, 5 क्लाइंट्स जो बीच बीच में साल में अपना बर्थडे है तो 2000 रुपया या 1000 रुपीज़ भेज देते हैं कि एनिमल्स को। और छोटे छोटे कुछ बच्चे भी हैं स्लम के जो मुझसे रोज़ बिस्किट पाते हैं, तो उनको कुछ खिला दीजिएगा, उनको कुछ गिफ्ट दे दीजिएगा। मेरे बर्थडे में मैं आपको डोनेट करती हूँ 1000 रुपीज़ से कुछ कर देना। तो इस टाइप के हैं, इस टाइप के लोग भी होते हैं, बहुत नहीं होते हैं फिर भी होते हैं। और मुझे डोनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने एरिया में, अपने आसपास में भी कर सकते हैं। मतलब गरीब बच्चों के लिए भी कर सकते हो, आप एनिमल्स के लिए भी कर सकते हो, करना चाहिए। आप बस्ती में चले जाइएगा, देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल गरीब, खुद के लिए 2 रोटी है, उसमें से भी आधा रोटी कुत्ते को खिला रहे हैं। तो कुछ देने के लिए दिल की ज़रूरत होती है। इतना मत दो, आपके पास जितना है उसमें से ही थोड़ा सा दो। तो रेवती का लॉर्ड पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ इज पशुपतिनाथ, एनिमल सेवियर। रेवती वॉज स्ट्रॉन्ग इन जीसस क्राइस्ट के हॉरोस्कोप में, रेवती वॉज स्ट्रॉन्ग। रेवती जीसस क्राइस्ट का स्टार है कहा जाता है, बिकॉज हीलिंग स्टार है ये, बेस्ट हीलिंग स्टार। ही वॉज द फर्स्ट हीलर, ऐसे कहते हैं कि वो टच करते थे लोगों का बीमारी ठीक हो जाता था। बाद में साईं बाबा भी हम जानते हैं, ऐसे भी और भी बहुत सारे हैं हस्तियाँ जो टच करने से बीमारी ठीक हो जाते हैं। मतलब दे आर द बेस्ट हीलर्स। उन्हें कोई मेथड, मैं हीलर हूँ, अब मेरे जैसे बहुत फेलो हीलर्स हैं, हमें पूरा मेथड फॉलो करना पड़ता है। जैसे देखो, लेमन टी, कुछ खाए पिए नहीं है सुबह से, क्योंकि आई हैव 2 हीलिंग्स। तो इतना सबके साथ मैं सोफे में सो रही हूँ आजकल, पैर फैला के भी नहीं सो सकती। सोफे में इसलिए सोना पड़ रहा है क्योंकि ग्लोई अगर अपना पट्टी खोल देगा तो मुश्किल है।
चकोला अगर अपना स्टिच फाड़ देगा तो भी तो चकोला को मुझे रास्ते में छोड़ना पड़ेगा, साथ कुत्ता नहीं रख सकते करके, तो अपने स्टिच वो फाड़ दिया। उसके साथ एक हीलिंग चल रहा था जिसका पूरे बॉडी में पेन है, उसका हीलिंग चलते चलते फिर एक आईसीयू पेशेंट का हीलिंग आया। तो इतना कुछ कर सकता है एक्चुअली एक इंसान, अगर वो टीवी ना देखे, अगर वो नेटफ्लिक्स ना देखे, अगर वो किसी चीज़ में एडिक्टेड ना हो, सिर्फ काम से एडिक्टेड हो। तो भगवान की कृपा से गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज़ ब्लेस मी सो दैट आई कैन कंटिन्यू विथ दिस work of helping them. Bye. Have a nice day.